Hello friends, good evening to all. I hope you all are doing good and your preparation for the prelims is also going very well. Today we are going to discuss very crucial aspects of the UPSC prelims. This is regarding our study, how we should study 10 hours plus daily for next 3 months, because next 3 months we have around 3 months only for prelims 2026, and how we are studying for next 3 months and what is our daily schedule will decide whether we are going to make through the prelims or not. And it is very crucial to all whether you have cleared the prelims earlier or not. ठीक है, क्योंकि prelims is going to be difficult, going to be equally difficult for all the people, and today it said prelims is mains because competition is so high and unpredictability is also high for the prelims. ठीक है, but if you have the right schedule then you are going to make through it. ठीक है, तो आज डिसाइड करेंगे, आज वी विल डिस्कस कि व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन फॉर द प्रीलिम्स. बहुत बच्चे की रिक्वेस्ट थी एंड ऑन दैट रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई विल हार्डली टेक 13 to 14 minutes. ओके, एंड बिलीव मी, if you watch this video till end it is going to help you immensely. It will help you immensely. Okay, so please be with me till end of this video. So let's start. See, first let me tell ki what I am going to tell you in this video, and this is based on my own experience as well as what science says about the daily routine thing. ठीक है, so first we will discuss the sleep cycle, कि for how many number of hours you should sleep and how you should sleep, then what should be your daily ideal schedule, what should be your study slots and what should be your rest slots. Okay, कि कब रेस्ट लेना है, कब स्टडी करना है, and some do's and don'ts at the end of this video. So okay, so without wasting any time, let's start. So first thing is sleep, कि how many hours you should sleep and how you should sleep. Okay, you know, we all know the importance of sleeping. ठीक है, it is said कि an adult should sleep around 8 hours. ठीक है, एन एडल्ट शुड स्लीप 8 hours. अगर 8 नहीं तो कम से कम 7 घंटे तो आपको नींद लेनी ही चाहिए, बिकॉज स्लीप री एनर्जाइजेज आवर बॉडी. ठीक है, जब हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है एंड इट री एनर्जाइजेज आवर बॉडी. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मिनिमम 7 घंटे सोना है. 7 घंटे पकड़ के चलो कि 7 घंटे सोना है. ठीक है, लेकिन इस 7 घंटे कैसे सोना है, हाउ टू स्लीप, वेदर यू शुड स्लीप 7 hours in one go. I would say please don't sleep in one go, rather go like 6.5 hour then half hour. Okay, ताकि आपकी बॉडी 2 बार री एनर्जाइज हो सके एंड यू कैन गिव योर मैक्सिमम. ठीक है, देखो कैसे करना है. इट इज़ 12 to 6:30. आई वुड सजेस्ट यू स्लीप 12 to 6:30 AM. ठीक है, 6.5 घंटे आप यहाँ पे सोइए और आधा घंटा का आप एक नैप लीजिए. ठीक है, एक आधे घंटे का नैप लीजिए लंच के बाद में, दोपहर में. मैं बताता हूँ कैसे. विल डिस्कस दीज इन डिटेल. सी, स्टडी स्लॉट्स. सो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, you should hit your bed 12 midnight means 12 AM and wake up at 6:30 here. ठीक है, अब आपको करना क्या है, and I am telling you one more thing. This schedule that I am going to tell you, this is based on prelims day. okay, prelims day के शेड्यूल के हिसाब से है, क्योंकि उसके लिए आपको आज से ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि prelims वाले दिन we have 2 papers, GS1 and GS2, that is CSAT. And you know, GS1 is 9:30 AM to 11:30 AM and GS2 CSAT is 2:30 to 4:30. ठीक है, so our plan should be based on these 2 papers because ultimately we are preparing for this D-Day. Okay, so all the things that I am going to tell you is as per the actual prelims examination which we are preparing for. Okay, and second is energy level.
एज आवर डे पासिस आवर एनर्जी लेवल गोज डाउन. ऐसा तो होता नहीं है कि इन द मॉर्निंग you are full of the energy and the same energy level you are able to maintain till night. It will not happen. Energy starts draining, okay, as day passes. ठीक है. और टारगेट्स कुछ ऐसे रहेंगे कि आप अचीव कर पाएँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड, you will hit the bed 12 midnight and wake up at 6:30 am. कुछ लोग अगर चेंजेस करना चाहें यू कैन मेक द चेंजेस, बट प्लीज फॉलो द ब्रॉड थिंग्स हियर. ओके. सो 12 to 6:30. अब यू हैव टू वेक अप एट 6:30. ठीक है. एंड यू हैव 30 minutes. इन दोज 30 minutes यू हैव टू गेट फ्रेश अप. ठीक है. फ्रेश हो जाना है और हल्का सा जूस वगैरह कुछ लेना है तो वो कर लीजिए. डोंट टेक वॉथ एज ऑफ नाउ. ठीक है. और तुरंत, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई है, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 7 to 8:30. ठीक है. 7 to 8:30. दिस इज स्लॉट 1. ठीक है. दिस इज स्लॉट 1. आफ्टर दैट टेक रेस्ट ऑफ 1 hour. एंड वॉट यू नीड टू डू इन दिस 1 hour, लिटिल बिट एक्सरसाइज अराउंड 30 minutes एंड योगा थिंग, मेडिटेशन जो करना है वो कर लीजिए. उसके बाद टेक शॉवर एंड नाउ टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट. ठीक है. ये 1 घंटे में आपको ख़त्म कर लेना है. उसके बाद 9:30 to 12:30 इज़ योर स्लॉट सेकेंड. 3 hours का स्लॉट रहेगा ये. 9:30 to 12:30, क्योंकि इसी टाइम पे 9:30 to 11:30 आपका GS1 का एग्ज़ाम होना है ऑन द प्रीलिम्स डे. लेकिन हमको 3 hours का स्लॉट रखना है. ठीक है. तो 9:30 to 12:30 आपको स्लॉट मारना है आपको. और इसमें GS1 के रिगार्डिंग चाहे स्टडी करना है स्टडी कीजिए, टेस्ट देना है टेस्ट दीजिए. ठीक है. लेकिन इसी स्लॉट में देना. उसके बाद यू विल गेट 1.5 hour. ठीक है. इसमें क्या करना है, आपको लंच करना है. मतलब 12:30 से लेके 2 तक आपके पास खाली टाइम होगा. उस टाइम आपको लंच करना है और करीब आधे घंटे का एक छोटा सा स्लीप लेना है. ठीक है. नैप लेना है फॉर 30 minutes. उससे ज़्यादा का मत कीजिएगा वरना फिर उठने में दिक्कत होगी. ठीक है. दिमाग उठना नहीं चाहेगा. देन 2 to 5 अगेन 3 hour स्लॉट. और इसमें हमारा CSAT आपको पढ़ना है. ठीक है. अगर थोड़ा बहुत 1 घंटा आपको अगर GS करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेजॉरली आपको CSAT करना है. चाहे CSAT के लेक्चर्स ले रहे हैं तो लेक्चर लीजिए, रिवाइज कर रहे हैं CSAT को रिवाइज कीजिए, टेस्ट देना तो टेस्ट दीजिए. व्हाट गिव इन दिस स्लॉट. क्यों? क्योंकि ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्ज़ाम, ऑन द प्रीलिम्स डे, यू विल बी राइटिंग CSAT फ्रॉम 2:30 to 4:30 PM. ठीक है. तो इस टाइम आपका CSAT का ये स्लॉट यहाँ पे पढ़ना ही चाहिए. ठीक है. उसके बाद अगेन आपका माइंड जो होगा थक चुका होगा तो 1 घंटे का यहाँ पे आपको फिर से खाली टाइम रखा है. उस खाली टाइम में आपको जो भी करना है, एक रिफ्रेशमेंट लेना है, चाय सुट्टा जो भी करना है वो कर लीजिए इस 1 घंटे में आराम से. ठीक है. 15 मिनट में आई डोंट बिलीव, तो 1 घंटे का प्रॉपर रेस्ट यहाँ पे. ठीक है. फिर 6 बजे से आपको फिर से बैठना जाना है. 6 to 8:30 अगेन 2.5 hour का ये स्लॉट होगा. स्लॉट नंबर 4. ठीक है. जो आपको पढ़ना है उसमें आपको जो पढ़ना है GS, मतलब GS CSAT तो आपको हो गया ऑलरेडी, तो GS पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर वगैरह इस स्लॉट में पढ़िएगा. क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो रखी होगी तो प्रिफर दी करंट अफेयर नाउ इन दिस स्लॉट. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से आपको 1 hour का फिर से गैप है आपको. अब इस 1 hour में आपको घर पे बात करनी है, अपने घर पे बात कर लीजिए. ठीक है. सोशल मीडिया चेक करना है 15 मिनट्स के लिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए और अवॉइड करें तो बेहतर है. आई वुड से डीएक्टिवेट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज ऑफ नाउ. ठीक है. और अब डिनर कर लेना है आपको. ठीक है. इस 1 घंटे में आपको ये काम कर लेने हैं. 8:30 से 9:30 बीच में, बिटवीन 8:30 to 9:30 डू ऑल दीज थिंग्स एंड डिनर. ठीक है. एंड 9:30 अगेन सिट फॉर द फाइनल स्लॉट ऑफ द डे. 9:30 to 11 PM आई वुड सजेस्ट. 9:30 to 11 PM आई वुड सजेस्ट. ठीक है. और इसमें क्या करना है, लाइट, सबसे लाइट वाला काम, हल्का वाला काम अब करना है, बिकॉज एनर्जी लेवल is at the lowest now. Okay. So what you can do, you can skim through the newspaper for 30 minutes, watch the PYQ videos on YouTube. So these are the things you can do and revision you can do. ठीक है. वो आप अपने प्लान के हिसाब से कर लीजिए कि आपको क्या करना है इस टाइम में. Okay. So these should be your slots
Now the final thing that I would like to tell you is this. Wait a minute. Yeah, some do's and don'ts before hitting the bed. ओके, सो 11 बजे तक आपका दिन ख़त्म हो जाएगा, 11 बजे तक, तो अब सोने की तैयारी करनी है आपको. सो सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू. First and foremost, and this is very very crucial, please do it on regular basis. Plan your next day. Plan your next day in advance. ठीक है, ये एडवांस में प्लान होना चाहिए. यू शुड नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक कि यू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड नाउ यू आर प्लानिंग कि ओके अब मेरे को आज क्या करना है. नो, देयर शुड बी एडवांस प्लान for the next day, so that you can, as soon as you wake up, you start executing that plan. So plan your day before hitting the bed, plan your next day before hitting the bed, and please be happy. If you are achieving the targets, please be happy. Let me tell you the truth, even if you are achieving to 80 to 90% of these targets na, you are going to clear the prelims, because number of hours I have told you is around 11 or 11.5. if you are able to hit 9 to 10 hours out of that, means able to achieve 80 to 90% targets, you are going to make through the prelims. ठीक है, but there are few things that you should not do before hitting the bed. Please don't do social media thing. ठीक है, 11 बजे से के बाद, 11 से 12 का जो टाइम है ना आपका सोने का, इसके बीच में, इससे पहले जो करना है कर लीजिए. इसके टाइम में प्लीज़ सोशल मीडिया स्क्रॉल मत कीजिए, यूट्यूब को स्क्रॉल मत कीजिएगा, बिकॉज दिस डिस्प्ले ऑफ आवर डिवाइस इज एमिट blue light and they disturbs our sleeping cycle. So please avoid it. Targets मैंने बता दिए हैं कि अगर 80 to 90% if you are achieving, then also you are going to make through it. ठीक है, so these were the main things that I wanted to tell you. And if you have if you enjoyed this video, please subscribe the channel and hit the like button. And one more thing is there, and that thing is that कि प्लीज़ टेल इन कमेंट सेक्शन द टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन. ठीक है, आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक्स पे चाह रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. ठीक है, और अगर कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है और समथिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम. ओके, एंड माई टेलीग्राम ID इज़ Sarma_Abhishek_98. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.